Hello everyone, this is Rushikesh Bankar, lecturer in Electronics and Telecommunication Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Our today's topic is Introduction to ASIC. So before start our today's lecture, first of all we will see what are the learning outcomes. So the first learning outcome is you will able to learn about the ASIC. Then you will able to know the evolution of ICs, and you will able to know the types of ASIC. So these are the three learning outcomes. So ASIC stands for Application Specific Integrated Circuit. तो ये एक प्रकार का ट्रे है जिसमें डिफरेंट आईसीज माउंटेड है. सो दिस ट्रे ऑफ ASIC चिप्स, ये डिफरेंट ASIC चिप्स है. ये सब चिप्स है, ये सभी चिप्स एक ट्रे पे माउंट किए हुए हैं, तो उसको बोलेंगे हम ट्रे ऑफ ASIC चिप्स. सो this is the microscope photograph of a gate array ASIC. This shows the predefined logic cells and custom interconnections. This particular design uses less than 20% of available logic gates. अब ये जो डिज़ाइन है ये 20% अवेलेबल जो गेट्स है उससे कम में डिज़ाइन हो रहा है. सो इंट्रोडक्शन. An application specific integrated circuit, that is ASIC, is an integrated circuit मतलब IC chip customized for a particular use rather than intended for general purpose use. तो ये जो ASIC है जो एक प्रकार का इंटीग्रेटेड सर्किट है, चिप है, वो पर्टिकुलर यूज़ के लिए इसका यूज़ होता है. For example, a chip designed to run in a digital voice recorder or a high efficiency Bitcoin miner is an ASIC. तो एग्जाम्पल देखो ASIC का क्या रहेगा. अ चिप डिज़ाइन टू रन इन अ डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर. तो जो हमारा डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर होता है उसको रन करने के लिए जो आईसी चिप यूज़ होती है, ये एक प्रकार का एग्जाम्पल हुआ है ASIC का. Then application specific standard product, that is ASSP chips, are intermediate between ASICs and industry standard integrated circuits like the 7400 series or the 4000 series. अब ये जो ASSP चिप्स है मतलब क्या हो गया, एप्लीकेशन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट एक प्रकार का जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है. तो ये कैसा है, इंटरमीडिएट बिटवीन ASIC और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है उसका ये इंटरमीडिएट है. अब जो इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री सर्किट्स है जैसे कि 7400 सीरीज़ है या फिर 4000 सीरीज़ है, इस टाइप से. सो ASIC chips are typically fabricated using metal oxide semiconductor, that is MOS technology, as MOS integrated circuit chips. तो ये जो ASIC chips होती है ये फैब्रिकेट कैसे होते हैं, यूजिंग मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, दैट इज MOS technology as an integrated circuit chips. As feature sizes have shrunk and design tools improved over the years, the maximum complexity and hence functionality possible in an ASIC has grown from 5000 logic gates to over 100 million. अब जो साइज है चिप का वो छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो गेट्स है डिफरेंट लॉजिक गेट्स, कितने 5000 लॉजिक गेट्स अप टू 100 मिलियन लॉजिक गेट्स, ये इतने गेट्स चिप में यूज़ होते हैं. तो उससे क्या होगा, हमारा जो डिज़ाइन वो इम्प्रूव हो जाएगा और साइज़ भी छोटा हो जाएगा. The modern ASICs often include entire microprocessors, memory blocks including ROM, RAM, EEPROM, flash memory and large building blocks. तो जो हमारे मॉडर्न ASICs है उसमें क्या होता है इंक्लूड, या फिर उसके एग्जांपल्स या सर्किट्स कौन से होंगे, माइक्रो प्रोसेसर है, मेमोरी ब्लॉक्स है जिसमें रोम आता है, रैम आता है, EEPROM आता है, या फिर फ्लैश मेमोरी है,
और अदर लार्ज बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये सब मॉडर्न ASICs में आते हैं. Such an ASIC is often termed as SoC, that is System on Chip. Designers of digital ASICs often use a hardware description language, that is HDL, such as Verilog or VHDL to describe the functionality of ASICs. तो जो डिफरेंट डिज़ाइनर्स हैं, डिजिटल ASICs बनाने वाले जो डिज़ाइनर्स हैं, वो क्या यूज़ करते हैं? HDL लैंग्वेज, दैट इज़ हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज. जैसे कि वेरीलॉग है, VHDL है, ये लैंग्वेजेस क्यों यूज़ करते हैं? टू डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी ऑफ ASICs. मतलब ASICs जो चिप होती है या उसमें जो चिप्स आते हैं उसके फंक्शन के लिए हमें HDL लैंग्वेज जो है, दैट इज़ हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, ये यूज़ करना पड़ता है. अब वो कौन सी लैंग्वेज है? जैसे कि वेरीलॉग है या VHDL है. तो जो हमारा ASIC चिप है उसको वर्कआउट करने के लिए, रन करने के लिए उसके अंदर जो है वो प्रोग्रामिंग होती है. वो प्रोग्रामिंग होती है वेरीलॉग में या फिर VHDL में. तभी वो हमारा ASIC की जो चिप्स है वो फंक्शन करती है. तो ये सब कौन करता है? डिजाइनर्स ऑफ डिफरेंट डिजिटल ASICs. नाउ द इवोल्यूशन ऑफ IC. सबसे पहले कौन सी थी? SSI, दैट इज स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन. और ईयर क्या था? 1962. तब क्या यूज़ करते थे? टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, मतलब 10 ट्रांजिस्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर टेंस में यूज़ करते थे. उसके बाद नैंड और नॉर गेट यूज़ होता था. उसके बाद कौन सा? SSI के बाद MSI, दैट इज मीडियम स्केल इंटीग्रेशन. ये कब स्टार्ट हुआ? लेट 1960 में. अब इसमें हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं और काउंटर्स यूज़ होते हैं. तो सबसे पहले था SSI, उसके बाद में आया MSI. देन LSI, दैट इज लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. अब ये कब आया? इन बिटवीन मिड 1970 में. अब इसमें जो MSI था उससे भी ज़्यादा ट्रांजिस्टर यूज़ होंगे, तो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स. और उसका एग्जांपल है फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर. जितने हम ट्रांजिस्टर्स यूज़ करेंगे उतना हमारा साइज़ जो है वो बढ़ेगा. और उसके बाद आया VLSI, दैट इज़ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. ये आया 1980 में. तो इसमें स्टार्टेड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं, दैट इज सेवरल बिलियन ट्रांजिस्टर इन 2009. 2009 में सेवरल बिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते थे इस वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में. उसके बाद 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर विद कैचे मेमोरी एंड फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक यूनिट्स. तो ये जो VLSI है इसके अंडर जो मतलब एप्लीकेशन लेवल पे जो सर्किट्स होते हैं, किट्स होते हैं, तो वो है 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर या फिर सेवरल बिलियन ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं. तभी वो आएगा VLSI में, बराबर है. देन लास्ट में है ULSI, दैट इज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. और ये आया लेट 1980s में. सो मोर देन अबाउट 1 मिलियन सर्किट एलिमेंट्स ऑन अ सिंगल चिप. तो साइज हमारा छोटा हो गया. द इंटेल 486 एंड पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर्स, ये उसका एप्लीकेशन हो गया जो यूज़ करता है ULSI टेक्नोलॉजी. देन IC टेक्नोलॉजीज. सो फर्स्ट इज बाइपोलर, advantage is more accuracy. Then second is MOS, so gate aluminum. Then low power consumption and low cost. And third is weak MOS. देन टाइप्स ऑफ ASICs. तो ये सब टाइप्स है ASICs के. तो ASICs के पहले दो टाइप्स है फुल कस्टम ASICs, देन सेमी कस्टम ASICs. उसके बाद सेमी कस्टम ASICs के फिर से क्लासिफिकेशन है, दैट इज स्टैंडर्ड सेल बेस्ड ASICs, देन गेट एरे बेस्ड ASICs, एंड थर्ड इज प्रोग्रामेबल ASICs. Then this programmable ASICs is again classified into two, that is PLDs and FPGA. तो ये PLDs और FPGA हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में देखेंगे. So this is the classification or types of ASICs. Now advantages of ASICs. So first is it offers highest performance. Then
द कॉस्ट इज लो, दैट इज लोवेस्ट कॉस्ट, स्मॉलेस्ट डाई साइज, साइज भी उसका छोटा रहेगा. देन डिसएडवांटेजेस ऑफ ASICs. So first is increased design type, then increased complexity, then higher design cost and higher risk. So these are the disadvantages and the examples are माइक्रोप्रोसेसर में यूज़ होता है, उसके बाद हाई वोल्टेज ऑटोमोबाइल कंट्रोल चिप्स में भी यूज़ होता है, देन NRDG कम्युनिकेशन चिप्स में और सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स में उसका यूज़ होता है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स. नाउ प्रोग्राम आउटकम्स, दैट इज PO मैपिंग. सो PO1, PO3, PO6 एंड PO7, ये 4 POs मैप होते हैं आज के लेक्चर के जो टॉपिक्स है उसके साथ. सो दीज आर द PO मैपिंग. सो थैंक यू.